Welcome back to Interact with Intellect. Today, we are going to have a detailed discussion on the role of finance in strategy formulation. As you all understand, that strategy is something for which you need resources. Whatever kind of strategy you decide, whether you decide to enter into new businesses, enter into new markets, develop new products, or you want to acquire new businesses, whatever you may wish to do, you need something called finances. And this is what exactly we are going to discuss in this particular chapter. To start off, we'll take a look at the relationship between strategy and finance. First of all, we'll take a look at managing for value. This basically means that how much value does this business or does this particular strategy add to the shareholders. यानी अगर हम एक particular strategy, whether it's a growth strategy, whether it's a competitive strategy, जो भी हम choose कर रहे हैं, इसका ultimate beneficiary shareholder को होना चाहिए. We'll discuss that in detail at a later stage, but this is what the core concept is. While talking about strategy and finance, we must also take into consideration the stakeholders and their expectations. We all understand that shareholders have their own set of expectations. They believe that the primary purpose of the organization is to serve the interests of the shareholders because they are the investors. However, अगर आप सिर्फ shareholders को खुश रखने की कोशिश करेंगे, तो you may end up having difficulties with other stakeholders which might become very difficult to manage. So, आज जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे लिए सिर्फ प्रॉफिटेबल होना या सिर्फ कैश फ्लोज का पॉजिटिव होना काफी नहीं है. हमें ऑर्गेनाइजेशन और उसके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को नजर में रखना पड़ता है. वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि वट एवर द कंडीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन आर, एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट gradual increase in their incomes. Banks expect that their whatever payments are due will be made in time. Your suppliers expect that their payments will be made within the given time frame. Your customers expect that whatever orders they have given, they will be delivered in time. And on top of it, shareholders still expect that you will give them dividends at the right time, and इनकी जो shareholder value है वो भी, उनकी शेयर वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज होगी. सो टू डू ऑल दिस वी नीड टू ऑपरेट ऑन अ वेरी टाइट ट्रैक. रीजन, बिकॉज हम इनमें से किसी भी स्टेक होल्डर को नाराज नहीं कर सकते. क्यों? अगर हमारा सप्लायर नाराज हो गया हमसे, हमने कहा कि जी ठीक है, हमने अपने कैश फ्लोज बेहतर करने के लिए सप्लायर्स की पेमेंट डिले करनी शुरू कर दी, वेल वी मे रन आउट ऑफ रॉ मटेरियल्स. इफ अवर बैंक्स आर नॉट हैप्पी, we can face problems in our short-term financing, even long-term को तो छोड़ दें. If our employees are dissatisfied, we might lose a major source of competitive advantage. So, can we afford to lose any of them? And believe me, I am not talking about all stakeholders here. मैं तो आपको दो तीन की example दे रहा हूँ. So, it is really important for us to manage our financial conditions in such a manner that these stakeholders are, if not excited, they should remain satisfied. On top of it, we also have to decide about the funding strategies. What is this term funding strategy? ये बहुत critical हो जाएगा, especially in a situation where you have strategic business units operating around. यानी अगर आप एक corporate parent हैं and you are running more than one SBUs, then your funding strategy will matter a lot. कैसे? Because हमने, if you can recall, हमने BCG metrics की बात की थी, जहाँ पे हमने problem child, उसके बाद stars, उसके बाद cash cow और फिर dogs की बात की थी. Now, for all these businesses जो इन मुख्तलिफ quadrants में आ रहे हैं, we have to have a separate financing strategy. कैसे? आइए एक नजर डालते हैं. All those businesses that are question marks are high on risk. They're very risky businesses. Why? Because they are new products
यू आर जस्ट एंटरिंग इनटू द मार्केट, आपका मार्केट शेयर नहीं है अभी आपके पास, और उस मार्केट में ग्रोथ ज्यादा है, तो प्रोबेबली वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा. सो देयरफॉर देयर इज अ चांस ऑफ अ बैकफायर, देयर इज अ चांस ऑफ अ प्रॉब्लम इन दिस. सो योर प्रॉब्लम चाइल्ड्स, या जिनको हम क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं, ये आपके वो एसबीयूज हैं जो बहुत रिस्की हैं. तो अब आप क्या रिस्की बिजनेसेस में रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे? नहीं, आपको यहां पे सेफ इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होंगी, बिकॉज द बिजनेस रिस्क इज वेरी हाई. ऐसी सिचुएशंस में द मोस्ट सुटेबल फंडिंग स्ट्रैटेजी इज दैट यू गो फॉर इक्विटी और वेंचर कैपिटल. सो आपकी जो डिविडेंड्स आपको जो इनिशियली देने हैं, वो आप हो सकता है ना दे सकें, बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन मार्क. यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. हाउएवर, जब यही प्रोडक्ट्स या आपके वो एसबीयूज जो यहां से मूव करके स्टार प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, वहां पे आपकी फंडिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी. क्यों? बिकॉज यहां पे भी बिजनेस रिस्क तो हाई है, बिजनेस रिस्क लो नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन there will be a lot of challenges that will be coming your way. तो आपको यहां पे भी लो रिस्क स्ट्रैटेजी ही अडॉप्ट करनी होगी. लेकिन ये वो सिचुएशन है जहां पे आप रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रखेंगे. रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा, व्हाई? बिकॉज इन अ स्टार यू हैव टू री इन्वेस्ट अगेन एंड अगेन. आप बहुत कम डिविडेंड्स उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं. रिकॉल कीजिए, हमने बीसीजी मैट्रिक्स में बहुत तफसील से बात की थी. सो in such a situation where your products are in a star category, आप low risk equity investment लेंगे. क्यों? ताकि आप उसको retained earnings को आप hold कर सकें और उसको आप reinvest कर सकें. Shareholders will get something, but not something very very exciting. Now, if you have a cash cow with you, अगर आपके SBUs ऐसे हैं which can be treated as a cash cow, तो वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी. ये अब हाई रिस्क बिजनेसेस नहीं है. कैश काउ इज अ मीडियम रिस्क सिचुएशन, जहां पे आप कंपैरेटिवली ज्यादा सॉर्ट ऑफ रिस्क, कंपैरेटिवली ज्यादा रिस्क आप ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. सबसे अच्छा आपके पास जो इसमें सोर्स होगा वो ये है कि आप रिटेन्ड अर्निंग्स को रीयूज कर लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि दैट्स सेफ, फाइन. हाउएवर, अगर आपको जरूरत पड़े तो वी डोंट माइंड गोइंग फॉर अ डेट एज वेल. व्हाई? बिकॉज इन कैश काउज, एज द नेम सेज, योर नेट कैश फ्लोज आर पॉजिटिव. तो आप ऐसी केस में अगर कोई आपको डेट की कोई पेमेंट भी करनी हो तो आप सेफली उसको ऑप्ट कर सकते हैं. हाउ अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज द डॉग. Dog is a low growth, low risk business, and you can use debt until you are deciding finally to divest. ये वो businesses हैं जिनमें हम कोशिश करते हैं कि आप मजीद इन्वेस्टमेंट ना करें. आप याद कीजिए, हमने डॉग्स में एग्जांपल्स ली थी. ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप नॉट नेसेसरीली सारे डॉग्स को आप निकाल देते हैं, बट जिनमें आपका बहुत ज़्यादा कंपनी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता. So ultimately what you do is you plan to divest from such businesses. So till the time आप ऐसा नहीं कर लेते, आप इसमें से कुछ रीइन्वेस्टमेंट का आप ऑप्शन नहीं रखते. जो आपको चाहिए भी होता है वो बोरोइंग से आप करके और उसको आप एडजस्ट करते रहते हैं. You do not wish to invest seriously into such businesses. So हमने पहली बात क्या की कि there is a connection between strategy and your financial position. और इसमें हमने मैनेजिंग फॉर वैल्यू को डिस्कस किया, जिसकी हम तफसील इसके बाद अभी बात करेंगे. दूसरी बात हमने की कि वी हैव टू कीप इन माइंड द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस. एंड द थर्ड थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज द फंडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने BCG मैट्रिक्स को सामने रखते हुए अपनी फंडिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन की.